Good morning, all of you. So, today we shall be discussing one of the very important theories of Hannah Arendt, that is his theory of action, which which she has discussed in her book, The Human Condition. But before I come to the theory, in the last video, I did get some of the reviews from the students that I should also include some Hindi words. So, as to those students who are not that much well versed with English, they should also be very much comfortable in understanding the theories. So I shall be including some of the English words. So you see, when we talk about Hannah Arendt, she is quite a very unique thinker, unique philosopher. Many of you see that her uniqueness is because of being a woman in a primarily male dominated field, that is political theory. However, I would ask you not to mention this in your answer sheets, okay, because somewhat that looks misogynistic or patriarchal in nature. Okay, the point is that Hannah Arendt is very much unique because of her ideas, because traditionally when we look at her, we link her to the Western way of thinking. So when we look at Western way of thinking, primarily the focus is on liberalism, right? Then comes capitalism, right? Then it is modernity. But the fact remains that she has been critical of all these ideas. Another important thing, that is French Revolution. When we talk about French Revolution, the modern ideas, that is liberty, equality, and fraternity, right? These are the three values that we got from French Revolution. But in her book on revolution, she has compared French Revolution with American Revolution. And the interesting thing is that she has gone for criticism of French Revolution. So you can see how many contrasting features that we are looking in the ideas, in the theories of Hannah Arendt. Okay. For example, when she talks about capitalism, she is among the fiercest critics, because she says that because of modernity in modern times, capitalism के कारण क्या हुआ है, the focus is on the economic domain. So once you start focusing on the economic domain, what happens is that the political domain, this is ignored. And she argues that because of this ignoring of political domain is what resulted in the rise of totalitarianism in the form of Nazism in Germany or fascism in Italy. Okay, then with regards to modernity, she says that because of this modernity there is loss of world. लॉस ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वर्ल्ड का मतलब है कि जो पब्लिक एंगेजमेंट पहले था, द वे पीपल यूज्ड टू एंगेज प्रीवियसली, दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, दे यूज्ड टू एंगेज विथ ईच अदर, दैट इज नो मोर देयर. व्हाई? क्योंकि मॉडर्निटी के कारण, लिबरलिज्म के कारण हमने क्या देखा है? देयर इज इंडिविजुअलिज्म. उसके आगे क्या हुआ है? इंडिविजुअलिज्म मतलब हम सिर्फ खुद को देख रहे हैं. लुक एट द आइडियाज ऑफ जॉन लॉक, जे.एस. मिल, वो लोग क्या कहते हैं? या फिर लिबर्टेरियंस, जब हम लॉजिक की बात करते हैं, या फिर व्हेन वी टॉक अबाउट हायक, सो स्टेट और सोसाइटी, दे इग्नोर इट. दे से दैट सोसाइटी इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट. पीपल गो देयर जस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, देयर वांट्स. और इसी से हना आरेंट को दिक्कत है कि यू कैन नॉट से दिस. Because of this individualism, because of this materialism in the modern times, we have ceded back from the political sphere. And when we cede back from the political sphere, we start focusing on the economic sphere. उसका नतीजा क्या होता है कि the totalitarianism, the fascist tendencies, the Nazi tendencies, वो बढ़ते हैं.
क्या होता है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, दे ट्राई टू मोबिलाइज द मासेस and they get successful. क्यों? Because the people are not participating, the people are not directly engaging in the public sphere, जो कि central point है her theory of action, which we shall be discussing in greater detail. When she talks about कि why fascism, or I mean why Nazism emerged in Germany and why Jews were targeted, she herself was a German Jew. Okay. So she said that what Jews did, they started focusing on the economic domain. तो जब आप इकोनॉमिक डोमेन में फोकस करते हो नेचुरली, एंड दे इग्नोर्ड द पॉलिटिकल डोमेन, एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड that the leaders like Hitler, they took advantage of this. They mobilized the masses on the basis of racial identity against the Jews, and which resulted in Holocaust. Okay. So इस तरीके से when we look at Hannah Arendt, she is definitely not a traditional thinker, जिसे कि हम सीधे का सीधा whether it is socialism or it is Marxism or it is liberalism or even it is feminism, she is a women thinker, right? But not a single trace of feminism you will find in her ideas. Okay. So these are some of the very specific features of Hannah Arendt and her thinking. So let us just go and look at the life and times, and then we shall see how her life, her times influenced her way of thinking. So the very first thing, born in 1906 in Germany. Which was the family? A German Jewish family. Being from a German Jewish family, she had the first hand experience of atrocities of Hitler Nazi regime. So you can see how her own experiences influenced her writing. Whatsoever she was writing, she was arguing, and you will see that in all her ideas, in all her thinkings, उस उनकी इनकी हर एक सोच में आपको इसका सीधे का सीधा इन्फ्लुएंस दिखेगा. That she was a Jew who had to flee from the Nazi persecution. उसके बाद क्या हुआ? In 1933, after completing her college, she had to fly away from her own home in Germany because of Nazi atrocities. सबसे पहले she went to Paris, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर भी अटैक किया एंड इट हैड वॉन ओवर. उसके बाद क्या हुआ? शी फ्लू फ्रॉम पेरिस टू द यूएस, and it is in the USA that she started writing her books, and she became very much influential, very much famous in the literary circles. And finally, in 1975, she passed. So we can see that primarily her life experiences were between the two world wars, primarily the World War II, her persecution, or her family, her kith and kin, their persecution from the Hitler Nazi regime, first to France, then to USA, and she wrote about. After experiencing all this, she has written. So let us look at some of her important writings. So you see, in her writings, I shall be giving you a brief about all these books, references, but we shall be discussing primarily this, the human condition. Okay. And most of the times there are questions from this particular topic only, and one of the PYQs that I have also taken is from this topic only. Okay. So her first book, The Origin of Totalitarianism. In this book, she has compared the Nazi regime and the Stalinist regime, which was there in USSR.
एंड शी हैज एक्सप्लेन्ड कि जैसे नाजी में वी वर लुकिंग एट कंसंट्रेशन कैंप्स जो कि ज्यूज के लिए था, उसी तरह से स्टालिनिस्ट रशिया में देयर वेयर गुलग्स। गुलग्स क्या थे? लेबर कैंप्स। कि whosoever did not agree with the works of Stalin, with the political ideas, ideologies of Stalin, they were sent over here. Just like all the Jews, they were sent to the concentration camps. And she has shown that totally the Stalinist USSR was nothing but totalitarianism, just like fascism and Nazism. What happened? Because of this, she was criticized as a Cold War intellectual. कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल क्यों कहा गया? क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे वन साइड इट वाज यूएसए, अनदर साइड इट वाज यूएसएसआर. शी वाज फ्रॉम यूएसए, शी वाज क्रिटिसाइजिंग यूएसएसआर. So she was criticized कि whatever she is writing, her arguments are not objective. It is politically motivated, it is ideologically motivated because of the prevailing ideologies of the Cold War. And that is why she was criticized as a Cold War intellectual. क्यों? क्योंकि इन्होंने यूएसएसआर को क्रिटिसाइज करके स्टालिन का जो रेजिम था रशिया में, यूएसएसआर में, द स्टालिनिस्ट रेजिम इन यूएसएसआर, शी हैड टर्म्ड दैट रेजिम एज टोटलिटेरियन. ओके, तो ये था हर ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. अगेन देखो, यू हैव टू रीड अ लॉट इन दिस. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ फॉर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज ये वीडियो चला जाएगा 1.5 घंटे 2 घंटे. If you want me to explain her other ideas in detail, you need to just write that down in the comment. I shall be explaining absolutely no issue. Okay. So before I come to the human condition, next is Eichmann in Jerusalem. ये जो टाइम था, Eichmann, he was a officer from the Hitler's army, Hitler's Nazi army. He was arrested and he was tried. And during this trial, and Hannah Arendt, she had gone for the coverage because as a correspondent from न्यू यॉर्कर मैगजीन. ठीक है, तो आयुष्मान से जब पूछा गया कि व्हाई डिड यू डू दिस, व्हाई डिड यू डू दिस, उसने बस बोला, जर्मन में बोला, इन इंग्लिश इट्स मीनिंग वाज ऑर्डर, ऑर्डर वाज ऑर्डर. आई मीन मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं. हाँ, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स गिवन बाय माय सुपीरियर. तो वही हना अरेंट हैज एक्सप्लेन्ड दैट आइखमान जो है, ही वाज नॉट सम, क्या उसे कहते हैं ना कि जैसे दानव कहते हो, सोशियोपैथ कहते हो, साइकोपैथ कहते हो, दैट ही इज नॉट एनीथिंग लाइक दैट. ही इज जस्ट लाइक एनी नॉर्मल इंडिविजुअल. इसने जो गलती की वो क्यों की? क्योंकि ही लॉस्ट द क्रिटिकल रीजनिंग. और वो रीजनिंग उसने क्यों लूज किया? बिकॉज ऑफ द मॉडर्निटी. मॉडर्निटी के कारण क्या होता है? देयर आर ब्यूरोक्रेटिक रेजिम्स. और इस ब्यूरोक्रेटिक रेजिम में क्या होता है कि जैसा ऊपर से ऑर्डर किया, नीचे वही करना है. तो जब ये टेंडेंसी हो जाती है कि जो ऑर्डर आया वो मुझे करना है, माय फोकस इज ऑन माय प्रमोशन, तो ऐसे में क्या होता है, आप सोचने की कैपेसिटी, यू डू नॉट इवन थिंक कि जो मुझे करने को कहा जा रहा है वो सही है या गलत है. एंड दैट इज व्हाई she argued that it is because of this regime, these tendencies, because she lost the capacity of critical reasoning.
She did not go for the analysis or evaluation of the orders that had been given to him, कि मुझे जो दिया गया है, जो ऑर्डर मुझे दिया गया, वो कितना सही था या कितना गलत था। तो इस कारण से, और उसने वही बताया है, ये सब मॉडर्निटी की दिक्कतें हैं। तो अगेन यू आर लुकिंग, और थ्रू आउट आप देखोगे कि हर एक में ना, शी इज क्रिटिसाइजिंग मॉडर्निटी बिकॉज ओकियोस ओवर पॉलिश, हमने पब्लिक स्फेयर को छोड़ दिया है। ओके, और इस एक चीज के लिए हना आरेंट को क्रिटिसाइज, शी वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बिकॉज पीपल वर सेइंग दैट व्हाई आर यू सिंपैथेटिक टू सच अ इनह्यूमन पर्सन हु हैज किल्ड सो मेनी। अब देखो, सपोज करो क्वेश्चन कम्स अबाउट दिस इशू आइखमान इन जेरूसलम, और इसी में एक कंसेप्ट है बैनलिटी ऑफ इविल। कि जो इविल है, जो बुराई है, दैट बिकम्स बैनल, इट बिकम्स फेसलेस, इट बिकम्स कॉमनप्लेस, such that people do not even think, people do not even talk that whatever is being done is right or wrong. For example, if you want to think about banality of evil, think about sati। सती पहले होता था ना, तो बताओ क्या किसी के दिमाग में आता था कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी, जो लोग वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दे डू नॉट थिंक कि whether this is right or wrong. They say this has been done, so that is why I am doing. So again you can see they are not applying that critical reasoning. या फिर उससे भी बड़ा एग्जाम्पल इन मॉडर्न टाइम्स, व्हेन यू लुक एट टेररिज्म, क्या है ये? आप खुद आपको सीधा एग्जाम्पल मिलेगा जो आइखमानिन जेरूसलम का था। टेररिस्ट when they go for suicide bombing, why do they go for it? I mean, just think about it, वो क्यों? I mean, हम ऐसे लोग हैं, खुद को बचा करके रखते हैं, चोट भी लगे तो तकलीफ होती है, तो चोट भी नहीं लगनी चाहिए। बट देर आर अ सेट ऑफ पीपल, देर आर सम पीपल हु विल सिंपली टाई बॉम्ब्स अराउंड देयर बॉडीज एंड दे विल गो एंड दे विल ब्लास्ट देमसेल्व्स, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल। व्हाई डू दे डू दैट? लोग ऐसा, कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? रीजन वही है, दे हैव लॉस्ट दैट क्रिटिकल रीजनिंग। क्योंकि जो भी इंसान उनका ब्रेन वॉश करता है, वेदर इट इज सम क्लेरिक और हुसोएवर इट इज, वो उन्हें कहता है दिस लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऊपर जाओगे वहां पे ऐसी, ये जन्नत है, वो परियां मिलेंगी, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, यू पीपल नो ऑल दिस। मैं बोलूंगा बिना मतलब चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, ठीक है? सो जब उसे ये बताया जाता है, तो वो सोचना बंद कर देता है कि ठीक है, जो गया, जो मुझसे पहले ब्लास्ट किया था, उसका कोई मेरे को प्रूफ तो दो कि उसे ये चीजें मिल रखी एंड ही इज हैप्पी ओवर देयर। वो नहीं पूछता है, वो ये भी नहीं पूछता मेरी जो यहाँ की जिंदगी है, मेरी यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, द पीपल अराउंड मी, या फिर ऑल दोज पीपल हु आई एम गोइंग टू किल, व्हाट इज देयर फॉल्ट। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल फाइट है, to target the people who took the decision, but why to target civilians? They simply do not ask why, because again जैसे आइखमान को ऑर्डर मिलता था, वो अपने सुपीरियर का ऑर्डर ले रहा था, उसी तरीके से व्हाट डू टेररिस्ट डू? दे से कि दिस इज माय रिलीजियस ड्यूटी। और वो रिलीजियस ड्यूटी के बारे में कौन, जो भी उसका रिलीजियस लीडर है एक्स वाई जेड, वो बताता है, एंड दिस पीपल दे डू दैट। सो दिस इज, you can very well understand this idea Ikhman in Jerusalem, banality of evil in present context. Why does it become evil? The type of society that we live in, the type of bureaucratic society, modern societies,
people who have lost their critical reasoning. The focus is only on the economic well-being. So ये है क्रक्स. अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं. ये क्रक्स है आइखवानी जेरूसलम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी फोर्थ बुक. उसके बाद फिर ह्यूमन कंडीशन डिटेल में डिस्कस करें. यहां पे ऑन रेवोल्यूशन, यहां पे एज आई सेड इन द बिगिनिंग, यहां पे शी हैज एक्सप्लेन्ड. इन्होंने दो रेवोल्यूशंस की बात की है. वन वाज अमेरिकन रेवोल्यूशन, सेकंड इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. राइट. When we look in political theory, when we talk about modern societies, modern states, the idea of rights, they have been driven from the French Revolution, its values of liberty, equality, and fraternity. But what Hannah Arendt says, she says that no, she does not support and she does not agree with that French Revolution was something big. She says that rather than that, it was the American Revolution she supports. She thinks this is more important. Reason आता है क्यों? Again, go back to her key ideas, critical ideas. जो French Revolution था, it was primarily about economic domain, right? याद है? थर्ड स्टेट का टैक्सेशन, दे वर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस, लेकिन उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे. तो उसके बाद फिर दिस वाज द फोकस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या था? द फोकस वाज ऑन पॉलिटिकल राइट्स, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. So she says that this is far more superior than French Revolution. Why? Because this is talking about political sphere, action in political sphere. So you can see in all her thinkings there are some very common strands that you will see across. So यहाँ पे she is, that is why she supports American Revolution. And she has also given example. She says that since it was about the economic domain, economic rights, we saw that after French Revolution again there was dictatorship. जेकोबियंस की जब आप बात कर सकते हो, वापस से मोनार्की आ गई थी. So she says that since it was focused on economic domain and not on political domain, political rights, and that is why it could not sustain, but American Revolution did sustain. Okay, and there was a society, there was a constitution written, and the rights of people were guaranteed. Lekin she has also gone for criticizing American Revolution. She says कि सिर्फ राइट्स देना काफी नहीं है. अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, चार्टर ऑफ राइट्स आया, लोगों को राइट्स मिल गए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. शी सेज दिस इज नॉट एनफ. व्हाट वी नीड इज दैट participation of public participation in the political sphere, political domain, and that regular engagement of people in the political sphere in America, that is still missing. So that is another reason why she criticizes American Revolution also. So you can see that all her thoughts, they have got some very unique ideas. She has got some very unique ideas, some very unique flavor. So इसके कारण ना हना अरेंट को आप जब भी पढ़ोगे ना, तकलीफ होती है, दिक्कत होती है कि समझें तो कैसे समझें. क्योंकि जब आप मार्क्स, ग्रामसी वगैरह को पढ़ते हो, अल्थ्यूजर को पढ़ते हो, चलो ठीक है, मार्क्सिज्म में स्ट्रैंड्स हैं, तो दीज आर द की वैल्यूज, दीज आर द की आइडियाज, जिसके अराउंड इनकी थिंकिंग घूमेगी. जब आप लिबरल स्टैंड में पढ़ते हो तो ठीक है, दीज आर द थिंकर्स, दीज आर द की आइडियाज, जिसके अराउंड हर एक थिंकर को हम डिस्कस करेंगे. बट व्हेन यू रीड हना आरेंट, किसी भी साइड, इकोनॉमिक डोमेन को नहीं, पॉलिटिकल डोमेन में भी लिबरल्स दे टॉक अबाउट लिबर्टी. लिबर्टी की ये तो सख्त खिलाफ है, क्योंकि लिबर्टी के कारण तुम अकेले अकेले हो गए, तुम पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. सो दैट इज व्हाई शी हैज क्रिटिसाइज्ड ऑल. एंड इट, सो
हना अरेंट को समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है। फिर भी अगर कोई भी दूसरा टॉपिक इसमें है, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट इन ग्रेटर डिटेल, वो आप बता देना। आज मैं थ्योरी ऑफ एक्शन सिर्फ इसलिए लिया हूं, रीजन बीइंग इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा मुश्किल होता है समझने। ठीक है ना? तो लेट अस गो टू ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब चलते हैं थियोरी ऑफ एक्शन इन हर बुक द ह्यूमन कंडीशन। तो देखो, when she is talking about the human condition, the title itself is somewhat intriguing कि ह्यूमन कंडीशन है क्या, आर वी नॉट ह्यूमन, और व्हाट इज ह्यूमन एज पर हना आरेंट। वंस यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया दैट व्हाट इज ह्यूमन एज पर हना आरेंट, उसके बाद फिर क्या होगा आपके लिए, इसे समझना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑल यू नीड इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन एज पर हना आरेंट। सो ठीक है ना? सो regarding human she has talked about two ideas, one is freedom, ठीक है, और दूसरा क्या है जिसे हम कहते हैं प्लूरैलिटी। ओके, प्लूरैलिटी आप इसे कह सकते हो, आप इसे डिस्टिंक्टिवनेस, वो कहती है यस वी ऑल आर ह्यूमन एंड दैट इज सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल ऑफ, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। व्हाई? बिकॉज द वे वी थिंक इज डिफरेंट, the way we speak, the way we act, the way we reason, the way we argue, that is different। और इसी के साथ उसने उन्होंने ऐड किया है एक टर्म नटैलिटी का। नटैलिटी मीन्स एनीथिंग दैट इज न्यू, और वो कहते हैं कि वेन एवर वी एक्ट, we do something, we produce something, we create something new, and that is how her freedom and plurality is directly associated with the idea of natality। ठीक है ना? natal creation, समथिंग दैट इज बॉर्न, कुछ बना है, कुछ नया पैदा हुआ है, कुछ नया क्रिएट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, वो सिर्फ इस पैरामीटर पर डिस्कस कर रही है दैट व्हाट इज इट दैट ह्यूमंस डू एंड कैन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी बी टर्म्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब जो भी इंसान जो भी काम करता है, क्या हम उसे ह्यूमन एक्टिविटी कह सकते हैं? और जिसे वो ह्यूमन एक्टिविटी कहती है, उसी को कहती है कि दैट इज अ ट्रू ह्यूमन कंडीशन। और ह्यूमन एक्टिविटी कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? हम जो भी कर रहे हैं ना, उसमें क्या होना चाहिए? हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए और हमारे पास प्लुरैलिटी होनी चाहिए। जिस किसी ह्यूमन एक्टिविटी में ये दोनों फीचर्स हैं, विच सो एवर ह्यूमन एक्टिविटी है, तो अगर उसमें ये दोनों फीचर्स हैं, इफ इट हैज गॉट दिस टू फीचर्स, देन दैट इज वर्थ डूइंग एंड दैट इज वर्थ, दैट एक्टिविटी इज वर्थ बीइंग डन बाय ह्यूमंस एंड दैट इज द ह्यूमन कंडीशन। अब बताओ इंसान क्या क्या करता, ठीक है? तो व्हाट इज इट दैट ह्यूमंस डू? तो देखो, इंसान दो काम कर, ठीक है, और वो दो काम क्या क्या है? हाँ, एक काम तो है थिंकिंग, इंसान सोचने का काम करता है, राइट? एंड देन देयर इज एक्शन। इस थिंकिंग को शी हैज यूज्ड द टर्म बीटा
कॉन्टेम्पलेटिवा, और जो एक्शन है उसका उसे कहती है वीटा एक्टिवा। तो देखो ये याद करना मुश्किल नहीं है, कंटेम्पलेशन से आया टर्म कंटेम्पलेटिवा। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है? सोचना। मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट, सो दैट इज वीटा कंटेम्पलेटिवा एंड दिस इज वीटा एक्टिव। तो अब थोड़ा देखो वीटा कंटेम्पलेटिवा के बारे में, व्हाट आर हर आइडियाज। तो वो कहती है वीटा कंटेम्पलेटिवा के बारे में कि ये जो काम है ना, सोचना है ना, दिस इज इवन वर्स देन लेबर। जो लेबर हम करते हैं, वो हम लेबर क्या है वो हम आगे में देखेंगे, उससे भी बेकार है। रीजन बीइंग कि जब लेबर काम कर रहा है तो कुछ तो क्रिएट कर रहा है, कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट व्हेन वी कंटेम्पलेट वी प्रोड्यूस नथिंग, वी जस्ट थिंक, देयर इज नो एक्टिविटी, वी आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग। सो दैट इज वाई शी से, क्योंकि हम दिमाग में हम सोच रहे हैं, हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं ना, तो दैट इज वाई शी सेज कि ये तो बिल्कुल बेकार है, इसका करने सोचने का कोई पॉइंट है ही नहीं। यू विल से कि ठीक है इंसान है तो सोचेगा। और नॉर्मली जब हम देखते हैं इन मॉडर्न सोसाइटीज, इट इज कंटेम्पलेशन विच हैज गॉट अ हायर वैल्यू देन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई घर बन रहा है तो लुक एट अ लेबरर एंड लुक एट दैट इंजीनियर जिसने कि नक्शा बनाया है। Naturally, payment to the engineer is far higher than that laborer, that worker. जब हम बात कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जो शॉप फ्लोर पर जो वर्कर काम कर रहा है उसका वेज बहुत कम है कंपेयर टू दोज इन द मैनेजमेंट लेवल, और वो तो अपना हाथ गंदा भी नहीं करते। देन लेट अस गो बैक टू प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने क्या कहा था? भैया थिंकिंग या सोचने वाला काम, दिस इज फार बिगर, फार मोर इम्पोर्टेंट। हना अरेंट कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर सोचने के बाद कुछ तुम करना भी चाहते हो, सोचने से तो सिर्फ कुछ होता नहीं है, करने से होता है। तो द मोमेंट आफ्टर थिंकिंग यू स्टार्ट डूइंग, then naturally you will fall into the domain of action. So unless you act, the thinking has got no value, the thinking has got no meaning, it has got no importance. So that is why she simply rejects vita activa and she gives preference, she gives primacy to, sorry, she rejects vita contemplativa and she gives preference, she gives priority to vita activa action. ठीक है, यहां तक आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट रहे नीचे कमेंट में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर। ठीक है, अब आते हैं, देखो अब she has rejected vita contemplativa and she is talking about vita activa, that is action। अब देखो फ्रीडम और प्लूरैलिटी, इन दोनों को याद रख, जिसमें भी ये फुलफिल हो जाता है वो एज पर हना अरेंट इज द ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, तो अब देखते हैं वीटा एक्टिवा में। तो देखो जब हम एक्शन करते हैं तो प्राइमरली तीन तरीके का एक्शन। वो तीन तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहले लेबर, फिर वो कहती है वर्क, देन शी टॉक्स अबाउट एक्शन। इन सब के लिए शी हैज गॉट स्पेसिफिक टर्म्स, लाइक इन केस ऑफ लेबर इट इज एनिमल लेबोरान, इन केस ऑफ वर्क it is homo faber, and in case of action it is zoon politikon। अब देखो, जब
लेबर, लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब है कि ऑल दोज एक्शंस दैट वी डू फॉर द फुलफिल ऑफ आवर बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स। जैसे अगर हमारे पास खाना नहीं है तो हमने खाने के लिए कुछ काम, अपना मतलब कि जस्ट टू हैव दैट लिविंग, जस्ट टू हैव दैट बेसिक लाइवलीहुड, उसके लिए हम जो करते हैं वो कहती है दैट कम्स इन द क्राइटेरिया ऑफ लेबर। ठीक है, इनका इनका अगला आर्ग्यूमेंट है, ओके, तो इन केस ऑफ लेबर शी सेज कि दिस इज समथिंग दैट एनिमल्स आल्सो डू। हमें अपना पेट भरना है, एनिमल को भी तो पेट भरना है। So in such a scenario, what is the difference between a human being and an animal? The thing is that animal को जो मिलता है वो खा लेते हैं, हमें क्या होता है कि हम पहले ढूंढते हैं उसके बाद खाते हैं या उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं। That is the basic difference. So do you think this is a condition of freedom? अगेन देखो, फ्रीडम वो लिबर्टी वगैरह वाले पे नहीं जाना है, ठीक है ना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट आइडिया। थिंक बी इन दैट हना आरेंट यूनिवर्स एंड थिंक अबाउट। Point is, when you are in a labor phase, when you are focused on your basic necessities, are you free? Are you doing, are you free? Can you experience freedom? Because every morning or every day you will have to go, you will have to do that thing so that कि मेरा पेट भरे, so that कि मेरे basic needs पूरे हों। So where are you enjoying freedom? You are ultimately bound with that basic needs of yourself. Okay? अगली बात यह है कि जब when you are in this phase, when you are an animal laborer, first thing is just like animal, okay? यहाँ पे क्या है? You do not enjoy freedom, so this is a stage of unfreedom. Then again वहां पे याद करो, what is the freedom के बाद second term, that is plurality और distinctiveness. तो मैं भी खाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, फॉर माई लाइवलीहुड आई एम डूइंग समथिंग, दूसरा भी कुछ कर रहा है, वो भी कुछ कर रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ मी बीइंग मी एंड यू बीइंग यू? कुछ भी अलग है यहाँ पे? she says that no, there is nothing distinctive, there is nothing new, so ultimately you are not freedom, you are not enjoying freedom, there is nothing distinctive. And next factor is that you are not creating anything permanent, that is non permanent. ठीक है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच शी सेज दैट दिस इज नॉट अ स्टेज वेयर यू आर एंजॉइंग फ्रीडम, दिस इज नॉट अ स्टेज विच वी कैन टर्म एज ह्यूमन कंडीशन। क्योंकि बेसिक नीड्स है, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम इट, एवरी डे यू विल हैव टू डू दैट थिंग। नेक्स्ट, व्हाट आई एम डूइंग समवन एल्स इज डूइंग, समवन एल्स इज आल्सो डूइंग, जानवर भी वही काम कर रहे हैं। देन यू आर नॉट being distinctive, you are not creating anything permanent. So इन सारे reasons के कारण she has simply rejected कि this is not human condition. Okay, अब देखते हैं next one, that is work. कौन सा कलर? येलो लेते, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट वर्क। ठीक है, तो वर्क के केस में क्या है? वर्क इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो देखो, वी हैव ऑलरेडी सीन इकोनॉमी की तो वो वैसे भी सबसे बड़ी दुश्मन है, because of focus on your economy you missed out on the political domain,
and that resulted in rise of totalitarianism. So how can she term work as a human condition? वो कहती है कि while engaging in human activity, yes, you are doing something different from animals. But again, are you free? The fact she says that no, there is no freedom. क्यों? क्योंकि whatever you are doing, whatever you are producing, there is a specific purpose. जो भी end product होता है, that becomes a means for something else. Whatever you are creating, अगर एक कैपिटलिस्ट है, अगर एक वर्कर है, वर्कर क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि उसे बदले में वेज मिलेगा, उसे खाना मिलेगा. कैपिटलिस्ट क्यों प्रोड्यूस करवा रहा है? रीजन इज दैट he will sell that in the market to gain some profit. So she says कि this is also not human condition, क्योंकि आप फ्री नहीं हो ना. Are you creating anything distinctive? वो कह दिया नहीं. Why? Because you are producing something for the demand of meeting the demand of someone else. Then how are you free? How are you doing something distinctive? उसके बाद वो कहती है on the basis of permanence, वो कहती है you are creating something which is semi permanent. ठीक है ना? अभी भी टोटल परमानेंट नहीं है, अभी भी द फैक्ट इज दैट इट इज सेमी परमानेंट. और क्या होता है? दिस लीड्स टू डिवीजन इन द सोसाइटी. You create actual walls as well as virtual walls, because while you are constructing something, you are creating walls and other things. उसके अलावा this also leads to walls within the societies. For example, division on the basis of class. वो तो यहीं से आता है ना. So again, that is also creating division, and this creation, it is creating division. How can we say that this is true human condition? Because human means coming together, engaging with each other, enjoying. So ये भी तो ह्यूमन कंडीशन नहीं हुआ. उसके अलावा इनका अगला आर्ग्यूमेंट है that for producing something you are also destroying something. There is destruction. Destruction कैसे हो रहा है? आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. अगर आपको लकड़ी से टेबल बनाना है, पहले आप उसके लिए पेड़ को काटोगे. अगर आपको माइंस एंड मिनरल्स निकालना है, फॉर दैट यू विल डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट. सो देयर इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. सो जब ये सिचुएशन है, तो ये सब के कारण भी हम कैसे कह सकते हैं दिस इज ट्रू ह्यूमन कंडीशन? देयर आर so many limitations, there are so many challenges over here. So these are the factors why even work is not a true human condition. You are not free, you are not creating anything permanent, then you are creating artificial walls, you are destroying nature. This is associated with destruction. So how can this be a true human condition? Next comes action. एक्शन में देखो एक टर्म है जून पॉलिटिकॉन. सो मैन इन पॉलिटिकल्स. ठीक है. तो व्हेन अ मैन इज इन पॉलिटिकल स्फेयर, अगेन दो चीजें देखना. इट इज फ्रीडम एंड plurality. So when you people come together, when they engage in political sphere, do they enjoy freedom? Right? क्योंकि they are challenging the state. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था. व्हाट वाज दैट? पीपल दे कम टुगेदर, दे चैलेंज द स्टेट, एंड इन द एंड दे गॉट दैट लॉ रिपील. अब लॉ रिपील होना था नहीं होना था, दैट इज अ टोटली डिफरेंट इशू. आई हैव सम डिफरेंट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे विच इज नॉट द मैंडेट ऑफ द क्लास. ओके. सो नेचुरली व्हेन यू engage in political sphere, you enjoy freedom.
freedom to do something, freedom to say something, freedom to act. Is there plurality? कारण ये है कि plurality क्यों है? Because when we engage in political sphere, I have some different line of thinking, you have some different line of thinking. So क्या है? This shows the plurality. I will talk as per my own convictions, you will talk as per your, you will talk as per your. So this shows plurality. So we can see that freedom and plurality, both these conditions, they are being fulfilled when man acts as June politicon. And this is what she terms as action. And this action is true human condition. ठीक है, तो इसी को वो कहता है कि भैया ये ह्यूमन कंडीशन है, इंसान के लायक है. एंड दैट इज वाई शी सेज दैट, उनका जब आप आइडिया ऑफ पावर भी देखोगे ना, वो यही कहते हैं ना, पावर इज एक्टिंग इन कंसर्ट. एक और चीज देखो, समथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू विल फाइंड अबाउट हना अरेंट इज दैट शी डज नॉट से व्हाट द आउटकम शुड बी. बाकी जब हम स्कॉलर्स को देखते हैं, दे विल गिव यू अ प्रेस्क्रिप्शन. हॉब्स कहता है ह्यूमन सिक्योरिटी इज द एंड गोल. लॉक कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दैट इज द एंड गोल. उसी तरीके से जेसमिल भी बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट ऑफ वुमेन की बात करता है, नॉन इंटरफेरेंस इन सेल्फ रिगार्डिंग स्फीयर की बात करता है. शी हैज नॉट टॉक्ड अबाउट एनी एंड गोल कि ठीक है इन द एंड सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, इन द एंड दिस इज व्हाट स्टेट सोसाइटी शुड बी. शी इज जस्ट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस. वो कहती है ठीक है लॉज बनाना है बनाओ, लेकिन उसमें पीपल का एंगेजमेंट होना चाहिए. उसके बाद फिर जो लॉ बनता है, जैसा लॉ बनता है, शी इज नॉट कंसर्न. वो कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म आया ही क्यों? क्योंकि लोग पॉलिटिकल स्फीयर में इन्वॉल्व नहीं थे. तो दैट इज वाई totalitarianism came. So she is not talking about something what ideally should be. वैसे हम इनको डालते हैं सिविक रिपब्लिकनिज्म के कैटेगरी में, क्योंकि जो भी whosoever thinker talks about engagement of people in the political sphere, direct engagement, they all belong to the civic republicanism domain. So that is why she is focused on the process rather than the outcome. ये भी नहीं कहती कि अगर लोग आ गए तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, जैसे रॉल्स कहता है कि जो मेरा जो थियोरी ऑफ जस्टिस है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर बाकी सारे लोग एग्री करेंगे. शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट. शी सेज दैट लेट पीपल कम, लेट पीपल एंगेज. जो भी उनकी बातचीत के बाद जो फाइनल डिसीजन होगा, दैट इट विल बी ओके. और जब ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करती हैं, तो वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी दैट कम्स इन कंट्रास्ट विथ द मॉडर्न वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी विच इज elitist in nature, which is bureaucratized in nature. क्योंकि लुक एट आइखमान, वहां पे उसी ब्यूरोक्रेटाइजेशन के कारण चैलेंज था ना. बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन देयर वाज अ टॉप डाउन अप्रोच. जो ऑर्डर हुआ, आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर. और उसके कारण सच थिंग्स इमर्ज, जहां की रादर देन यूजिंग योर क्रिटिकल रीजनिंग, यू फोकस ओनली ऑन द following the orders, obeying the orders, and that led to the rise of totalitarianism. ठीक है, तो हमने देख लिया इनका डिटेल में इन थ्योरी ऑफ एक्शन और बाकी सारे बुक्स का व्हाट इज द रफ जिस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी दूसरा टॉपिक है, इफ यू फील लाइक, यू कैन राइट इन द कमेंट्स, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, एंड आई शैल बी एक्सप्लेनिंग दैट. हाँ, अगर इसका नोट्स चाहिए रिटर्न, नीचे में कमेंट में बता देना, मैं गूगल ड्राइव में इट विल गेट अपलोड. ओके, so I hope I have explained this. Doubts, comment, I'll explain.
and let us go to the PYQ. Okay, so I have kept one PYQ, and after explaining the human condition, Hannah Arendt's theory of action, I don't think there should be any problem with this question. This was a question in 2019. Look at it, it is a 20 marker, मतलब कम से कम आपको 3.5 पन्ना तो लिखना ही लिखना. Okay, so what does the question says? Question says that critically examine. तो देखो, ऑपरेटिंग वर्ड इज क्रिटिकली एग्जामिन, सो क्रिटिकल एग्जामिनेशन चाहिए ऑफ व्हाट? हना अरेंट्स कॉन्सेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन. ठीक है, तो सवाल बस इतना है, लेकिन एक टर्म जो नॉर्मली यू पीपल मिस, दैट इज क्रिटिकल एग्जाम. ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले व्हाट इज दैट की टर्म? की टर्म इज द conceptual triad of labor, work and action. Conceptual triad of labor, work and action कहां पे है? The human condition. So in the intro you will give reference to Hannah Arendt has explained about the conceptual triad of labor, work and action in her book The Human Condition, where she has termed action as the true human condition. ओके, तो देखो हमने इंट्रो में क्या किया? की टर्म्स, व्हाट आर द की टर्म्स? हना अरेंट का तो है, तो हना अरेंट क्वेश्चन में ही है. किताब कौन सा है? नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली हम ऐसे नहीं तो आइडियोलॉजी डालते, इट बिलोंग्स टू विच स्कूल. यहाँ पे स्कूल का कोई लफड़ा है नहीं, तो वी विल एक्सप्लेन इन विच बुक. ठीक है, वी हैव एक्सप्लेन्ड, एंड देन वी आल्सो एडेड कि व्हाट इज हर कंक्लूजन इन द बुक. हर कंक्लूजन इन द बुक इज दैट द एक्शन इज ट्रू ह्यूमन कंडीशन. ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे वीटा कंटेम्पलेटिवा एंड वीटा एक्टिवा, और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई डज शी रिजेक्ट कंटेम्पलेटिवा. यहाँ पे नाम मन है तो नाम डाल देना प्लेटो का, दैट व्हाइल प्लेटो हैज सपोर्टेड कंटेम्पलेशन इन हर थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग या थिंकिंग, शी हैज गिवन प्रायोरिटी टू एक्टिवा. क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटेम्पलेशन को, थिंकिंग को क्यों रिजेक्ट किया है. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू पॉइंट्स, राइट इट डाउन. देन यू विल गो एंड एक्सप्लेन ऑल दीज थ्री. लेबर के बारे में क्या है, वर्क के बारे में क्या है, एक्शन के बारे में क्या है, तीनों के बारे में एक एक पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ. ठीक है, अब आता देखो, यहां तक आप में से मोस्ट लोग सिर्फ यहां तक लिखते हो, मामला खत्म करते हो. दिस इज टोटली रॉन्ग, because again you are not focusing on the demand of the question. Demand is critical examination. One thing is that, so first you will explain कि modern जो liberal scholars हैं, ठीक है ना, what do they say? वो कहते हैं भैया, वो कहते हैं they give greater importance to work, freedom in the economic sphere. आप नाम बोल दोगे. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? इन ऑर्डर टू क्रिएट हिस्ट्री अ मैन हैज टू लिव in order to live a man has to eat, in order to eat a man has to work. So the first historical action was work. So she is supporting work, sorry, Marx, he is supporting work. और फिर अगला क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट क्या दोगे? इनका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है ना, दैट शी डीह्यूमनाइजेस लेबर. कारण क्या है? दैट समवन इज लेबरिंग, समवन इज डूइंग वर्क एंड यू सिंपली से दैट दिस इज नॉट अ ह्यूमन कंडीशन. हाउ कैन यू से दैट? सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म. ठीक है, ये सब के बाद लेकिन लास्ट में हम रेलेवेंस की बात करेंगे.
तो हम रेलेवेंस की बात कैसे करेंगे? तो उसे प्रेजेंट या मॉडर्न टाइम के साथ लिंक कर देना। कैसे? इन द प्रेजेंट टाइम्स व्हेन वी आर लुकिंग एट द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट रेजिम्स, पॉपुलिस्ट लीडर्स, in such a scenario, Hannah Arendt's idea of action, that is participation in political sphere, her emphasis on civic republicanism, holds immense importance for continuation and success of democracy and nipping totalitarianism in its bud. इसके साथ खत्म। हमने क्या किया? हमने पूरी, देखो बहुत बार आप क्या करते हो, इसका सिर्फ लिखोगे लेबर विटा एक्टिवा, सॉरी लेबर एनिमल लेबोरन, जस्ट एज एन एनिमल, नॉट फ्रीडम, पार्शियल फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। क्वेश्चन का सेंट्रल डिमांड है तो इन तीनों पर कम से कम 1 से 1.5 पन्ने आपको देने हैं मिनिमम। ओके, फिर हम क्रिटिसिज्म पर जाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे रेलेवेंस की, एंड दैट टू ड्यूरिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट रेलेवेंस इन कंटेम्परेरी। Okay, so with that, I hope you will be comfortable in writing answer of such question. Okay, that's all for this lecture. In the next video, we shall be coming up with some new ideas from our PSIR syllabus. However, you can also suggest some of the topics to which you want me to discuss. Okay, thank you very much.